around somewhere 500 million on Instagram. Plus YouTube followers subscribers are like around 3 million. I love to be blingy. I love to be a dancer. I love to be bold. I love to be a good actor, dancer. So yeah, I'm following my passion and I think yeah. Hey guys, this is Nirav Mehta, Goldman Dubai. Let me tell you a very, very interesting story today. I just met somebody so flamboyant, so blingy, just a couple of days back, and I was so crazy to do a podcast with him. And when I heard his story in short, I like, boss, this needs to come out very big and very, very interestingly to everybody, people who know him and who know me. Because it's so crazy that he has been part of Indian Idol twice. And of course, and more social media is attracting him and he is attracted to so many things. So let's hear by Ishan Messi. Welcome, bro. You are so blingy. I try to be a little blingy like you, And but you're I looking so cannot match perfect. to you. I cannot match to you. All appreciate. I love your presence, the jewelry, what you're wearing, the shades, the hair. You are really perfect as a Thank blingy you. guy, Thank and you, you Neerav. are a Thank brand you, ambassador for so many big things in life. So Sure, great, sure, bro. sure. So let me know you more today. My audience all know me that I'm Ishan Messi. I have done India's Got Talent twice. Fantastic. Season 5 and season 8 on Colors. And yes, we are doing so good on Instagram also. I have 2.9 million followers on Instagram plus on YouTube And also. growing, It's, and growing. And plus अभी normal reach भी जो चल रही है, it's around somewhere 500 million on Instagram. Plus YouTube followers subscribers are like around 3 million. So yeah, we are doing good in the career and lots of things are meant to come. What attracted you to choose this career? Is it the love of people or is it your own passion? I think my own passion. Okay. Because I think जब आप अपना पैशन को फॉलो करते हो तो लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या करना चाह रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है. What matters more like what's your passion and are you following your passion passionately? So for me that matters more. I love to be blingy. I love to be a dancer. I love to be bold. I love to be a good actor, dancer. So yeah, I'm following my passion and I think yeah. I'm sure when I saw his Instagram page, इनकी boldness को तो कोई पहुंच नहीं पाता है. That is my guarantee, bro. When did you start this? Or when did you think about starting this kind of a reaching out to public in millions? I think ये शुरुआत इंडियाज गॉट टैलेंट से ही हुई. Okay. तो करण जौहर सर का एक कॉन्सेप्ट था कि आई वांट अ वेरी बोल्ड कॉन्सेप्ट ऑन नेशनल टीवी which is called Kama Sutra. He on himself national is TV. very bold, of Yes, course. exactly. So उन्होंने बोला कि आई थिंक ईशान इज द परफेक्ट पर्सन जो मतलब नेशनल टीवी पे एक अच्छे तरीके से बोल्डनेस को दिखा सकता है. तो कॉन्सेप्ट था कामा सूत्रा एंड आई प्लेड वेरी वेल और उस एपिसोड की टीआरपी ही 5 पॉइंट ऊपर थी बहुत ज़्यादा. सो वहीं से वो शुरुआत हुई. तो वहीं से मुझे टैग मिला सेंशियस कपल ऑफ इंडिया, देन कामदेव ऑफ इंडिया एंड नाउ फ्रॉम इंस्टाग्राम इट्स इमरान हाशमी 2.0. क्या बात है. So you're adding on tags, Adding on tags, yes, exactly. Excellent. So this journey was planned? प्लान नहीं थी ऑफ कोर्स कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये बोल्ड की तरफ जाएगा या फिर ये इरोटिक हो जाएगा या फिर ये हॉर्नी वीडियोस की तरफ जाएगा जैसे कि हो चुका है. बट ये वो कहते हैं ना कि इंडस्ट्री आपको किस तरीके से प्यार करना शुरू कर रही है. कभी इमरान हाशमी ने सोचा नहीं होगा कि उसको सीरियल किसर का टैग मिलेगा. कभी मलाइका अरोरा को पता नहीं होगा कि वो मुन्नी बदनाम होगी. तो आई थिंक दिस इज हाउ यू पोर्ट्रे योर सेल्फ एंड किस तरीके से लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं. तो मैं तो एज अ डांसर ही अपना करियर पोर्ट्रे करना चाहता था और आगे बढ़ना चाहता था. बट वो इंडियाज गॉट टैलेंट से वो जो टैग मिला सेंशियस कपल ऑफ इंडिया, कामदेव ऑफ इंडिया, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, लाइक इट्स अ गुड टैग. मैं क्यों सोचूं कि मेरे बाद कोई कामदेव आए, मेरे बाद कोई सेंशियस कपल ऑफ इंडिया Get the first mover advantage. एग्जैक्टली कि अगर इस चीज में मैं टॉप करता जा रहा हूं देन व्हाई नॉट मी. ये टॉप कहाँ तक जाएगा? अभी तक तो देखो मेरे अलावा मुझे तो नहीं लगता है कि कोई इंडिया में मेरे जितना बोल्ड बन पाया है. एंड पिछले 5-6 साल से मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ईशान भाई का कोई कंपटीशन ही नहीं है. मैं ऐसा होने तो नहीं दूंगा बट मैं चैलेंज भी करता हूँ. आई लाइक योर एटीट्यूड के भाई मैं मेरे ऐसा बन के दिखाऊं. एग्जैक्टली. और मेरे जितना क्रिटिसिज्म झेल के दिखाओ, मेरे जितनी ट्रोलिंग झेल के दिखाओ. सो इट्स नॉट दैट इजी. What are the difficulties? जैसे आपने बताया कि it's not that easy. What are the difficulties? Of course, we are living in India and India जल्दी से कुछ भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है बात जबकि स्पेशली कुछ बोल्ड मूव की हो. बिकॉज एवरीवन इज प्लेइंग सेफ इन इंडिया कि ठीक है अभी हमें थोड़ा सा
देशभक्ति ही करनी है तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, हमें थोड़ा पेट्रियोटिज्म दिखाना है तो ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। जब आप कुछ अलग करने जाते हो, जब आप कुछ बोल्ड मूव लेते हो तो इंडिया जल्दी से एक्सेप्ट करता ही नहीं है। नहीं तो- सर, 2 मिलियन फॉलोअर्स, 3 मिलियन फॉलोअर्स तो एक्सेप्ट तो आप हो गए हो, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां तक मैं जानता हूं। बिकॉज या जो मिलियन का जो टिक मार्क आता है उसका मजा अलग होता है। या सो सर क्या ये मिलियन से पैसा मिलियंस आता है? अभी जो मैं चाहता हूँ वो तो नहीं हुआ है, बिकॉज आई थिंक मेरा जो एम्बिशन है और जो मेरा बेंचमार्क है वो इतना हाई है, उसका जो बार है कि वो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा है। बट येस, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेट। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि आई एम फॉलोइंग माई पैशन मोर। तो मेरे को उतना मनी अट्रैक्ट करती है, बट उतना नहीं जितना मेरा पैशन मुझे फॉलो Yeah, अट्रैक्ट because करता है। money is not everything. But Yeah. everything needs money. या सो मैनी पीपल आई थिंक दे हैव मोर मनी देन मी, बहुत ज़्यादा अमीर होंगे मुझसे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो फेम मैंने कमाया है एक स्मॉल टाउन चंडीगढ़ से आके, मुंबई में आके, एंड अपना एक पहचान बनाना, अपना एक रुतबा बनाना, सो आई थिंक फॉर मी दैट मैटर्स मोर। एंड टुडे माई इंस्टाग्राम रीचेज अराउंड 770 मिलियन, सो आई थिंक मेरे लिए वो बेंचमार्क ज़्यादा बड़ा है। So the numbers do make a difference. येस, आई थिंक येस, Who does approach you? आई थिंक ऑल द जेन जी। All the Gen Zs? Yes, I think they are loving me so much because मैं जब अपनी ऑडियंस देखता हूँ, जब कमेंट्स पढ़ता हूँ, जब अपनी रीच देखता हूँ कि कहाँ पर मेरा कंटेंट जा रहा है, तो आई थिंक वो एक 17 से 25 साल तक के जो जनरेशन है वो ज़्यादा मुझे फॉलो करे, एंड आई एम सो हैप्पी। It's so nice to know that in this country where there is so much of restrictions on media, social media, and so many things which are coming up which is accepted, non-accepted, किसी पे controversies होती है, किसी में problems होते हैं। ईशान भाई जैसे पावरफुल लोग जिन्होंने कैमरा का कभी फियर ही नहीं रखा है कि जो उनकी इच्छा है वो करते, चाहे ऑडियंस को पसंद आए या ना आए, बट जब मिलियंस में टिक मारता है, आई एम श्योर ही इज एक्सेप्टेड एंड ही इज डूइंग ग्रेट। एंड आई विश यू के ये आपका मिलियंस का ट्रिलियंस में भी पहुंच जाए, Yes, बिकॉज yes, योर inshallah, कॉन्फिडेंस इज व्हाट inshallah. गेट गुड एनर्जी, यू नो। Yes, yes, आपका also. जो यू नो एज यू सेड, यू जस्ट बिहाइंड पैशन, और पैसे के पीछे नहीं है। और जब आप अपने पैशन के बाद यू रीच योर लेवल ऑफ सक्सेस, मनी विल फॉलो यू, यू डोंट नीड टू फॉलो मनी। मनी कैसे फॉलो करना है वो मुझे आप सिखाओगे ना। सर सबके लिए सर मैं आपसे कुछ सीखूंगा, आप मेरे से कुछ सीखोगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी आर गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ हिज postings and his likes and dislikes. Thank you.